मैं भी वेट कर रहा हूँ सर, अब से सुनने का मौका मिलेगा। सर स्टार्ट करें। Pranesh, can you put it on record? Yeah. Okay. I think. Yeah. Yes, put it. Thank you. You can start. Yeah. So once again, good morning, all the participants and all the guests in this online program, Physical Education and Community Coaches. So, dear participants, again we have one more very esteemed, very experienced, very known person in the field of physical education, and sir has experience of defense armed forces as well. So let me introduce and welcome our today's speaker, Dr. Jai Prakash Bukar sir, Associate Professor, Department of Physical Education and Sports, Central University of Haryana. On behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, Sai LNCP, Trivandrum, Kerala, and on behalf of our principal, Dr. G. Kishore sir, I would like to welcome our today's speaker, Dr. Jai Prakash Bukar sir. Sir, we welcome you in our online training program. Thank you. Now, I would like to extend my heartiest welcome to course co-coordinator, Mr. Sujit Panigiri sir. Sir, once again, we'd like to welcome you. Thank you, Narendra. Yes. Now, let me take this opportunity to introduce sir, because sir is having a huge experience in the field of physical education and sports. So, sir is presently working in the Central University of Haryana in the Department of Physical Education and Sports, and sir has joined there recently. And before joining Central University Haryana, sir was working in LNIP Gwalior, a very prestigious institution for the physical education and sports. Now, let me tell you about the sirs. So, about the qualifications, sir has done BPEd, MPEd, MPhil, PhD, and UGC NET. Sir has done diploma in mechanical engineering, ICC diploma in track and field, world athlete level 2 course as well. Sir has keen interest in the field of research, especially in sports psychology, track and field. Sir, he is more interested in the field of track and field and sports psychology and conducting field studies. He had worked as a faculty at LNIP Gwalior more than 13 years. As I mentioned, sir recently joined Central University of Haryana. Before here, sir was in Gwalior. Now, sir has also done teaching, training and research at the UG and PG level, MPhil and PhD level. Sir has also written 2 textbooks of CBSE physical education for class 11 and 12. Sir has published more than 40 research articles in various national and international journals. Sir has 99 citations in the Google Scholar. He has also participated and contributed in more than 25 national, international seminars, conferences, workshops in various parts of the country. He has participated in athletic, circle, kabaddi and river rafting at national level. At present, he is a national champion in 110-meter hurdles in his age group. Sir has won gold in the pole vault, silver in the 100 meters hurdles and bronze in 400-meter hurdles in the Asia Pacific Masters Games held at Penang, Malaysia from 6 to 15 September 2018. Really, it's a big achievement. Huge achievement. Yeah, it's a huge and big achievement for the sir. And he also possesses an international coaching diploma in track and field from University of Budapest, Hungary, with an excellent grade. He is a national technical official in athlete
and label to coach for World Athletics. So without taking further more time, let me take this opportunity to welcome Dr. JP Booker, sir. Sir, we are really glad and we are really, honored to have you in our program, sir. So now over to you, please, sir. Thank you, Dr. Narendra Gangwar. I'm really happy to see you after a long time. And first of all, I'm really honored giving an opportunity for this interaction with the professional colleagues. I'm very thankful to the most dynamic leader of the Professor G. Kishore, who had given this opportunity to me, though I have not interacted much with Kishore sir, but he is a well-known figure across the country. Everybody is aware of about his dynamic leadership. Sir, I'm really thankful. I'm thankful to the Khelo India and then the Trivandrum, the LNCP Trivandrum, who is really organizing a fantastic workshop targeting for more than thousands of coaches and physical education teachers across the country. And your team, the Sujit Panigrahi, Narendra Gangwar, and the madam, they are taking a lot of pain making this the workshop in a very fantastic, and really I appreciate in my this many of years of experience. I have never come across such a well designed, presented all the material to the speakers and continuously in touch to make it more successful. So I really salute this the whole team. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. So once again, really your whole team deserves a big round of applause. Of course, on this virtual mode, we cannot see the emotions of everyone, but still my true the emotions I could express in front of all of you. And without taking much of the time, the area the organization had given me the fantastic, the area which I really enjoyed. That is the sports psychology. We call it is the sports social psychology, and especially we all know why as a coaches or the physical education teachers we should know about it. We know the general sociology either in terms of the general public, but here the main target being the physical education profession. We deal with lot many people, especially we have our athlete with us, we have their parents, we have our fellow coaches, and ultimately we are working in a set of organizations, so we are interacting with a lot of the administrators. So how to deal a cohesion between the different stakeholders. So it's a really big challenge for a physical education teacher or as a coach. So I'm damn sure it is a really art dealing with the different mindset of people. So this presentation, what I have intended to discuss with all of you is about, at the end of this presentation, do we have the answer of our queries that we have in our mind? The query could be, we can say, okay, let me make this screen bigger. You people may be more comfortable. So the purpose, you can simply understand why we are more want to know about this, the behavior of the coach dealing with others. So who are others? It's just now I narrated. The center hero is our player, the athlete, the trainee, the team whom we are addressing. We are encountering every day the different situation. So the mechanism, and to deal this kind of the scenario, how we can become a role model for our trainees. Friends, you all are aware, you are the better judge because you truly working with the youngsters in schools and the academies or in your coaching clubs.
where you have very young population, young sports person. So I do not have that experience with the young people, but still I know the mechanism. So to understand how to select a coaching style, it cannot be a universal style for all of us, and the style depends on many things. The many things, why I have used the word the many things, it depends on your own personality. The style depends your own philosophy. The style depends your innate characteristics. So we cannot have the same pattern for all of the learners. It depends on the situation. So how we should get a mastery. So at the end of this discussion, you will get some of the answers from this the area, that how we can choose the coaching style. And friends, वो कहा जाता है अपने प्रोफेशन में, हम एक जादूगर हैं, एक मदारी, magician. They want to present their show in most beautiful way. So the more participant or the more viewers can see their show. So as a coach, we are also the same thing. How we can make our coaching more effective. So it depends. The first thing is the primary thing. I cannot say the only one thing, but it's one of the elements of the coaching, the style, that is your communication. How do we communicate? A good orator, sometimes you may not speak, but still you have communicated to your training, your athlete. So what way, what pattern, what situation you focus on, some of the area we will be talking about this coaching, the style. And another thing we are going to get from this presentation is to understand the coach's role in relation to the other staff members, the club administrators, and the other fellow coaches or fellow PE teachers, and to understand how to develop a healthy coach-parent relationship. Friends, this is the most sensitive and the crucial point. And every day we are the part of the discussion in the society, the coach-athlete relationship, the way we deal the situation, how do we proceed, how we should deal this, the most pious, the deal, the duo, how they should manage. Then the third partner, the parent, if they do support. So it's really a very Herculean task, a very challenge, but I'm damn sure with your generosity, you can confidently handle the athlete, the coach, and then the rest of the community people where we are coaching. And then another area, how we can influence, our coaching can be the influential, how we can give the better results. And it's not a one-day task. So let us see the small the presentation this team has prepared. Of course, I have not prepared. So I give the credit to this entire the Trivandrum LNCP, the director, who have really selected a fantastic video. So if the sound reaches to you, please listen. What kind of coach? It is a scene of in the changeover room. How the coach comes to the changeover room and behaves. What way? Is it working? It's a really fantastic video. I think it's coming up. It will take a few seconds, but I really enjoyed this, the nicely selected without using much words. सर, yeah. सर ये आप गूगल से प्ले कर रहे हैं कि अपने डेस्कटॉप से प्ले कर रहे हैं? डायरेक्ट गूगल से आ रहा है, आई थिंक। हाँ सर, तो फिर आप बीच में क्लिक कर लीजिए सर, आ जाएगा। सर मैं शेयर कर देता हूँ।
Is it okay? On a down, boys. No, You're sir, acting we on सर a आ down. नहीं रहा है, आप 1 मिनट अनशेयर कीजिए, मैं शेयर करता हूँ सर. अच्छा नहीं आ रहा. आप 1 मिनट का अनशेयर कीजिए. Every single one of us, Just a every second. single one of these topics are real. This Just a great second. topics are real. You've got something to say, son. No, no. Yeah, I think it's not coming up. तो मैं शेयर कर देता हूँ सर, 1 Oh, सेकंड. anyway, I thought I'm it's sharing it, working, but let me. I'm sharing it, sir. It's not there. Sir, I'm sharing it, sir. Yeah, if you can, Is it okay? Guys, coach is coming. Looking, by the way. Right, boys. I can't believe your performance today. Does putting that top on not mean something to you? I feel so let down, boys. Honestly, Sujeet साहब आ रहा है your क्या? attitude is terrible. आप बताइए. You should all hang your heads in मुझे दिखाई shame. दे रहा है, but I do not know about others. 100% today. Yous gave me nothing. Every single one of yous was a disgrace to the top that yous are wearing. You got something to say, son? No, nothing, sir. Effort, zero. Attitude, zero. Sort yourselves out. Has anybody else got anything to say? What are you going on about Matty for? What about him? Missed 3 tackles, gave away a penalty. He still says he's better than all of us. You're the disgrace. Who gave you the right to act like that? You did. So I'll play the next one, which is a good coach. So I'm playing this one, sir. आप अपना सर आपने नहीं आया सर. सर आप अपना अनशेयर कर लीजिए सर. मैं म्यूट करूं? नहीं आप शेयर को हटा दीजिए सर. Okay, मैं शेयर हटा दूं. Okay. Because people are not able to see it, no? सर आपने हटा दिया? आपका अभी भी आवाज आ रहा है सर. हाँ सर, तो मैं शेयर कर रहा हूँ सर. आई एम शेयरिंग इट नाउ. आई एम शेयरिंग इट. नहीं आ रहा. हाँ सर, आपको दिख रहा है नरेंद्र सर? नरेंद्र सर, हेलो सर, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है जब मैं शेयर कर रहा हूँ? जयप्रकाश सर, can you see my screen when I share it? Okay. I think people are saying that they can see it. Okay. So I'm sharing the first one. So this is an example of a bad coach. Just 1 second. हाँ संजीव सर, आपको दिख रहा है? हेलो. अच्छा चलिए, मैं आपको बाद में बात करता हूँ. ओके. नरेंद्र सर, आपको दिख रहा है स्क्रीन में ना? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है. Okay, I'm playing the video. So could you see the earlier video, which is a bad coach? Yes, but that was not that much clear. But okay, so I'm just playing it again. Sorry about it to everyone. Guys, coach is coming. Looking, by the way. Right, boys. I can't believe your performance today. Does putting that top on not mean something to you? I feel so let down, boys. Honestly, your attitude is terrible. You should all hang your heads in shame. I would give 100% today. Yous gave me nothing. Every single one of yous was a disgrace to the top that yous are wearing. You got something to say, son? No, nothing, sir. Effort, zero. Attitude, zero. Sort yourselves out.
Has anybody else got anything to say? What are you going on about Matty for? What about him? Missed 3 tackles, gave away a penalty. He still says he's better than all of us. You're the disgrace. Who gave you the right to act like that? You did. So now this is an example. So that was about bad coach. This is an example of a good coach. Goddamn! Hit him harder, Lee! Didn't let him away for you! Good. Come on, out for it. Good, Matty, keep going. Keep control. Good, pass it on. Pull it in. Great shot. Oh, lucky. Great save, keeper. Well done. Get harder into him! You get back there and defend that! Grab him! Pull him! Kick him! Don't let him get by you! Excellent tackle there, Cammy. Go on, keep going. Ian, go on, keep going. Oh, forget it. Forget it. Go on. Come on, guys, we're doing well here. Go on, let's keep it going. Oh, I can't believe you! Get into them, boys! Oh, I can't believe that! What are you doing? Go on, up you get. Get the head up, come on. Oh, good, Corey, good. Keep driving. Go on. That's a great shot. Well done, great goal. Well done, Andy Crawford. Great goal. You should take up Bally the way you're running about out there. Honestly, it's ridiculous. Play with a bit of pride in your game. You must be one of the worst players I've ever signed. You're ridiculous. There's no effort or anything coming for you. Yes, sir. Sir, I'm exiting right now. You can continue with your presentation. Hello. Hello. Sir, hello. Sir, I'm sharing it right now. Stopping the share. Sir can continue. I think, just a minute. I think he got some. Wait. Sir, चले गए क्या? Or should I? That I'm again trying. Okay. Or we can just continue and then you can join back. Okay, just a minute. Sorry, Hello. participants. There's a little bit of a technical issue. So I think Dr. Jayaprakash is back. So I played the video when he Hello. was. So when he was not there, I was trying to play the video. So these were two examples. जिसमें one was a coach. Sir, आप try कर लीजिए उनसे. मैं तब तक. No, he's already on board. And Sir, can you switch on your audio, sir, Dr. Jayaprakash? And you can share your screen also, sir. So participants, there's a bit of a technical issue Dr. Jayaprakash is facing, but basically to tell you, so what we saw, one was an example of a bad coach who actually shouted at, who constantly keeps shouting at all his players. Other one is a good coach who actually motivates, whether the player is scoring goal or not, he still motivates. So every player actually looks up to some role models. So coaches are the best role models for them. So whatever the coaches says, I mean, they believe the coaches more than their own parents. So basically coaches are like God to them. Yes, sir. You can actually put it on full screen. At the bottom, there is a full screen button.
सर नीचे है सर। राइट साइड में सर शेयर शेयर्स के राइट साइड में बता रहा सर सबसे नीचे है सर, सबसे नीचे जहाँ पे स्लाइडर है, नीचे कमेंट्स लिखा हुआ है, नोट्स कमेंट्स लिखा हुआ है, सबसे नीचे सर, बॉटम। आवाज आ रही है और अनम्यूट हो गया? सबसे नीचे है सर। तो मैं आपको ये 1 मिनट सर, मैं आपको रिमोट कंट्रोल मांग रहा हूँ, आप मेरे से रिमोट कंट्रोल में आपसे ले रहा हूँ, अब फिर हटा दीजिए रिमोट कंट्रोल को। लेकिन सर यहाँ पे है बटन सर, नीचे इस जगह पे बटन है, सबसे नीचे सर। मैं शेयर कर देता हूँ सर, स्क्रीन छोड़ दीजिए सर, मैं आप कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, वहां से आगे से शुरू कर दीजिए जहां से आप कर रहे थे। ओके 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 सर, ओके जहां आपने खत्म किया उसके आगे से कर दीजिए, कोई दिक्कत ओके सर। ओके सर, इसको आप बंद कर दीजिए सर अपना। क्लोज कर दो। यस सर, आप क्लोज कीजिए सर। ऊपर जाइए सर, सबसे हाँ। ऊपर जाइए, स्टॉप। सर मैंने उनको एक वीडियो दिखाया था जो बैड कोच का और गुड कोच का, सो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। वेरी गुड वेरी गुड, मैं वही चाह रहा था वो आपके उधर से रन हो जाए। यस सर, यस सर। So now I am audible to them. यस सर, yes sir, you can start. So friends, I think just now you have watched the types of the coaches, how they deal a situation. So should we, what kind of the behavior we should perform in front of our new learners? एक वो था, एक वो gesture जिसके अंदर coach shout कर रहा है, and another gesture you had seen, the another coach is so pleasing, and the athletes, the team is fully inspired. So after analyzing these two type of behavior, now we can understand. You see, to be a role model, and becoming a role model, of course it's not an easy task. It's easy to say, but it is not impossible task also. अब देखिए जनाब, as a coach, you are the coach, I'm one of the coach. Should you not lead your team from the front, or you are only the instructing them? So there should be a great leadership in the as a coach. You should have a ownership for your team. टीम की जिम्मेदारी आगे लेके चलें अपने ग्रुप को, अपने प्लेयर को, अपने खिलाड़ी को. And what else you can do? Coach is also expected putting a sportsman spirit. ये कहाँ से सीख के आते हैं हम? Either at the family level or at the play field level. तो जनाब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. I think most of the time that on the television screen the people are putting a fantastic example of the sportsman, the spirit. This is not a concrete word. The spirit, the gesture you show in a very awkward condition, like your opponent is injured and still you have the gesture. You are warmly taking care of even the opponent, but still being an opponent, but you take care. In many situations, it happens in sports. You are near to the finish line.
your opponent just fallen, still you are encouraging to finish the race, and you have seen ample videos. बहुत सारे आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जो ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने खेल के बारे में, वो जो ये दर्शाते हैं कि देखिए ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. We cannot read in the classroom literature as a sportsman spirit. It is failed by your behavior. So coach puts this example, this situation, the respecting, regulating rules and regulations, putting the ethics, what is not good, we should not cheat, there should be a fair play spirit. It depends. That makes you a more remarkable coach, and we call it is the model coach, who always teach, who always inspire the learners the good things. By winning, you may lose, but with a fair play. That's the sportsman spirit, and that comes, this responsibility is being taken care of by the coach. And as you know, he should be well communicated, well versed. जो कहना चाह रहे हैं वही बात अपने ट्रेनिंग तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं. तो थोड़ी सी हमें अपनी कोचिंग की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी रिफाइन करने की जरूरत है. जो लोग हैं बहुत अच्छी बात है, वो अपने बाकी साथियों को भी ये जेस्चर दें कि यदि लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो, बॉडी लैंग्वेज और वार्म वेलकम, जो आप कह रहे हैं वही कर रहे हैं. there should not be the conflict, the direction different, what you say and what you do. It should be in resonance. जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है, और इसी को बोलते हैं the man of action. जो कहता है वो कर रहा है. And therefore you can be a respectful person. You should be respectful to your fellows, your teammates, your other friends in the society. So ultimately you are getting a kind of respect, and that makes you again a model coach. And friends, in sports we all know we cannot compromise with in reporting or in the training, and that we in general terms we call it is the punctuality. सही समय पे पहुंचना, ये एक ऑनरशिप है, ये जिम्मेदारी अपनी खुद की. हमें no one should compel us to reach in time, rather we inculcate the habit in our trainees. If you reach as a coach on the play field in time, in days to come, slowly the other your trainees will start copying you, and you are putting a kind of picture of the that we call the punctuality. My coach is always in time. So slowly you miss the learners. They will start practicing and follow it. So we are making them a good citizen as well. And responsibility, you owe the responsibility. Jimmedari, if your team loses, still you owe the responsibility. Yes, I take the responsibility. You simply avoid putting them. वो एक अच्छा कोच कहता है, यदि आप जीत रहे हैं आप उनके साथ में आगे खड़े हैं. यदि वो कहते हैं पीठ खिलाड़ियों की आप देख पा रहे हैं तो आप पीछे से उनकी सुरक्षा दे रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं पीछे की तरफ से. वो कहा जाता है इफ ए गुड लीडर, एंड कोच इज वन ऑफ द गुड लीडर, कि वो खिलाड़ी को आगे से लीड करता है और पीछे से उनको ध्यान रखता है. थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें. The coach is the back eye of the player. Who is behind them, what they are making move, and the strategy behind them. So it's the extended eye of the players. So be sensible and be honest. Honesty with yourself, honesty with your trainees, honesty with the profession, and honesty in you can say in all means. So if you have the honesty gesture in your personality, certainly you will be liked by all, and that makes you a kind of the role model. Am I not audible? Yeah, audible, sir. Some people are putting this one. Okay. No, sir. The self-discipline, friends, we should take the ownership. So we are running a little late, so thoda fast karenge. Yeah. And then the self-control. Ultimately, these things as a role model, if you take care, you can go ahead, because now you are controlling.
slide. Now, these functioning in the coaching fraternity, it has been well defined. Your coaching style, and style comes by your philosophy, and philosophy, what we say, it's by your deeds. रोज हम क्या करते हैं, किस आधार पे फैसले लेते हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं, और ये एक्शन मैंने किया on what reason I have took the decision. इस टाइप की जो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और इसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या फंक्शनिंग काम में लेते हैं. तो जो आपकी अपनी फिलोसफी, लाइक माय फिलोसफी, एथलीट फर्स्ट, विनिंग सेकंड, इट कुड बी बाय वन ऑफ द फिलोसफी. और भी बहुत सारी फिलोसफी हो सकती है, आपका तजुर्बा हो सकता है. मेरे लिए भाई मेरा खिलाड़ी पहले है और उसकी जीत जो है वो बाद में है, यानी आप खिलाड़ी के लिए केयरिंग करने का एटीट्यूड है. ऐसा आप क्यों सोचा, ये आपका अपना बर्ताव है. इट कैन नॉट बी, समवन कैन नॉट एम्फेसाइज. तो उसी के आधार पे फिर आपके फैसले होंगे, और वो फैसले आपकी बन जाएगी आपकी स्टाइल. तो जनाब आप देखिए कि हम फैसले लेते हैं, बहुत तरह के फैसले लेने पड़ते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और उसमें से कईयों को हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक, यानी कि एक वन साइडेड, द कोच डिसाइड एवरीथिंग. क्या ऐसा करना चाहिए? Yes, I firmly believe there are situations where you have to be the autocratic. Why I say that sometimes this is very important in putting the autocratic efforts. वो फैसले जहाँ सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, या बड़े ग्रुप को डील कर रहे हैं, और यदि आप सेफ्टी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो वहां कमांड ही चलेगी. वहां आप लिबर्टी प्लेस पे छोड़ देंगे, तो जो क्लास का ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास you are asking them to throw a kind of javelin, teaching the javelin throw, and without your command someone has thrown and the area is not safe, who will be held responsible? So sometime on command, or we call the authoritarian style, is useful, no doubt. But do we have this mechanism at every level? Of course we have to review it back. कि हर जगह ऐसा स्टाइल जरूरी नहीं कि यही स्टाइल काम में आए, but at certain level we have to ability to change our style depending on what kind of the training we have, at what level they are trained. Then there is another style, they call it the democratic. The people have called it the open nature. The decision is solely in conjunction with your training, and as a coach मिलके काम करना. आप उनको भी उनकी भागीदारी, उनको एहसास करा रहे हैं, ये काम में आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आप कर सकते हैं. लाइक कोई सिचुएशन आती है गेम के अंदर, आप अपने प्लेयर से पूछते हैं शायद कि भाई ये मूव जो हम ले रहे हैं ये ठीक है, आप सहमत हैं, और वो भी उनका कंसेंट दे रहे हैं. सो इट्स ए जॉइंट ऑनर्स on any issue. So democratic style is also welcomed, and rather it is more useful. But this is useful on trained people, or you have a set of new style you are going to impose in a game. गेम का आपको एक पैटर्न खेलना चूज कर रहे हैं कि we will play with W shape or 3:2 pattern. So you are taking in concurrence with your learners. There is the laissez faire, we call it, is very casual, जो सब कुछ खिलाड़ियों पे छोड़ देते हैं. बहुत सारे कोचेस होते हैं, अपने में से भी होंगे, जो कहते हैं अरे तुम लोग देख लो, you just play, you take your decision. My decision is I agree with your decision. So there are people. So we cannot simply blame, like a match is going on and for no reason avoid interruptions. So let them, if they are going in smooth way and they are taking their own decision, sometimes this decision is the style is also very welcome. So implications, implicit this the decision by the, we call it is this kind of leadership which we call depending purely on the athletes, the trainees, whereas the autocratic is the coach centered, coach takes all kind of decision, and democratic is the mutually. So you have the flavor of a little democratic approach, उनको भी मौका मिल रहा है. तो जनाब अब आप देखिए, यदि तो ये तीनों टाइप की जो लीडरशिप है आपकी, just move to the next one. Here you can see very comfortably what is we call, which coaching style should we adopt. Just now I talked, we cannot be 100% on one style. A good coach
has the ability to change from one situation to another situation. Take an example. Here is what I just mentioned, the safety issue. कहा ना कि यदि कोच ने बहुत अच्छा खेल करवाया, उसकी हो सकता है आपको शाबाशी ना मिली हो, लेकिन खिलाड़ी घायल हो गया, चोट लग गई because of a kind of negligence, you will be sued badly with all, with the society, media, parents. So please take adequate care, and then in that kind of situations you can certainly impose like autocratic, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा dictatorship की जरूरत पड़ती है. Do not compromise. There is no time for negotiation. So when introducing a set play like penalty corner, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताने का प्रयास किया है. ऐसी सिचुएशन में आपका जो डेमोक्रेटिक अप्रोच इज द बेटर अप्रोच, और जहां पर आपको ये देखने की जरूरत है कि सेट यूनिट ऑफ प्ले यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड गोइंग ऑन, लेट देम. सो ये स्टाइल भी आपकी काफी दफा बहुत इसके अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं, और इनके बीच में जो रिसर्च के शायद यहाँ पे रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज दिस इज नॉट मोर फोकस्ड फॉर द रिसर्च कम्युनिटी. Here we are dealing with the coaches. तो रिसर्च कम्युनिटी में इसके अंदर एनालिसिस में भी ये चीज सामने निकल के आई थी. टीम्स के जो स्टाइल्स के ऊपर जो फुटबॉल के कोचेस, बास्केटबॉल के कोचेस, उसमें से कंपैरिजन किया हुआ था, और जिन कोचेस में ये तीनों ही का फ्लेवर था, दे वर कंसिडर्ड द बेटर कोच. ऐसा स्टडी का आउटकम था जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. You can go to the next. So use different style. Now you have gone through, but हमें एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया है इन्होंने, avoid this freak type of style, the freak coaches. ये जो सनकपन वाले लोग कोच होते हैं, हद से ज्यादा जिद्दीपना, एक ही चीज की भूत सवार होना, थोड़ी सी उस टाइप की ऑटोक्रेटिक बिहेवियर में कि वो जिद पकड़ के बैठने वाली स्टाइल से थोड़ा यदि हम बचें तो हम शायद बेटर हो सकते हैं. इसमें कहा गया है कि sometimes you tell the things. How I should tell the thing? If I am not involving my trainees, and एक बहुत अच्छा लिटरेचर मेरे पास में अभी हाथ में है, जिसमें एक कोच प्लान करता है. If you can see on the screen, this can what we people are doing every day. We are planning something, then the plan we execute, and then we review it. So in this mechanism, if we are a good coach, we take the consideration of these 5 fingers. Just remember the 5 elements. What are those 5 basic elements? हमें एक अच्छी कोचिंग या अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत है. The first important thing, build and develop a relationship with your trainee, with your team, with the member of the teams. How you can develop the relationship? It's the second. Now we are going to that next part. And then you should be instruct and explain well in advance. क्या करना है, कैसे करना है. यदि ये defined है तो ambiguity नहीं होगी, ट्रेनिंग के अंदर कंफ्यूजन कम होगा, और साथ में आप डिमोन्स्ट्रेट करके बता पाने की स्टेज में है. इट्स ऑलवेज नाइस. डिमोन्स्ट्रेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डायरेक्शन. यदि पर्सनली यू कैन नॉट, यू कैन चूज ए बेटर डिमोन्स्ट्रेटर आउट ऑफ द ग्रुप. एंड देन द स्किल यू वांटेड टू टीच देम, ऑब्जर्व इट केयरफुली वेदर दे आर डूइंग और दे आर कैपेबल टू हैंडल इट. ऑब्जर्व and then analyze. After your good observation and then your analysis, now give a good feedback, and the style of the feedback should always be the optimistic, the positive type of feedback. You have to rectify the faults, but not with the negative comment. And ये एक universal coaching का जो philosophy बताई गई है, ये मैंने उसके आधार पे आपके सामने बात रखी है, और इसी का ये जो 5 building strong relationship का आपके सामने एक मॉडल दिखाया गया है, और यही बताया गया है. The coach should be very clear in the communication, give the clear and the precise direction. And एक साथ में अपनी कोचिंग के अंदर हमें we try to avoid too many faults at a time, जो कि एक अमूनन अपना एक fault होता है coaches community. Suppose you're one of the players is doing a kind of skill and you are observing. At a time, if we focus on a specific move, slowly let the child get adapted,
and then slowly it comes to a refined level. But वो एक ही दिन में एक ही साथ बहुत सारे उसके फॉल्ट ठीक कराने का प्रयास करेंगे, then the child may lose the interest. उसको ऐसा लगने लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं। तो थोड़ा सा प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैंने 5 बातें बताई वही को इस जो सर आपके सामने एक व्हील के माध्यम से बताने का यहाँ पर भी वही प्रयास किया। The another is your genuine interest. The coach must show an interest that goes beyond immediate team related issues. क्या है, कोई immediately कोई issue है जिसको handle करने की जरूरत है? Yes, the coach should. A coach with genuine interest will gather information about players that may help with game strategy, practice, and general team bonding. And this general team bonding, we call it the team cohesion. दोस्तों ये बात पे पूरा यकीन करिए, यदि आपकी बॉन्डिंग कोहेजन नहीं है टीम के अंदर, कोहेजन को हम कहते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम, there is no I word in your team, it's we use, develop a habit, let us do, let everyone, but मैं ऐसा करूंगा, मैंने ये किया, so the moment there is an individual identity, then it is a bunch of different interest of people. और जहां इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई हो गए तो हम वहां पे हमारी कोहेजन कम हो जाएगा, और कोहेजन जब कम हो जाएगा तो हमारे जो आउटपुट हैं वो वीक हो जाएंगे। दूसरा साथ में बताया, ये भी कहा कि द कोच शुड बी अवेलेबल। कोई समस्या है तो उसको मेरे खिलाड़ी को ये लगे माय कोच इज ऑलवेज विथ मी, मे नॉट बी फिजिकली बट इट इज अप्रोचेबल थ्रू फोन समटाइम, अप्रोचेबल थ्रू सिटिंग इन द गैलरी, by sometime having the eye contact. So the coach has, and once please do believe, I mentioned the word, the first statement was building relationship, and the relationship, the base of the relationship is the trust. दोस्तों विश्वास किसी का जीतना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है. So I should not explain, or I should not educate any one of you. We all are the professional colleague, but please, if we really wanted to save our profession, do maintain the trust with your athlete. ट्रस्ट में बहुत बड़ी ताकत है. कोच का सहारा, कोच को वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा भरोसा करता है, अपने टीचर से ज्यादा भरोसा करता है कि कोच ने ऐसा कहा. सो प्लीज डोंट, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, बट इसको बनाए रखें. मेरी तो यही एडवाइस रहेगी. नेक्स्ट, go to the next slide. All right, yeah, I'm on the next slide. So then teach parents about the sport, because ये हमारा एक बहुत ही इंडियन सिनेरियो में खास तौर से मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट. इसलिए तो ये ट्रायंगल बना था, द एथलीट, द कोच, पेरेंट. और इस ट्रायंगल में the role of the parent is equally important, but what as a parent, how do they help, we have to understand. Appreciations of the sport, including like rules, skill, strategies. If sometimes parents are curious, they wanted to know, even they may be educated if time permits, or you have that kind of the system, you can orient. कई दफा पेरेंट्स बाहर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनकी दखलंदाजी भी बहुत ज्यादा होती है, और जिसको हम साइड लाइन कोचिंग कहते हैं कि बेटा ऐसा कर लो, बच्चे ऐसा करो. लाइक बच्चा स्विमिंग में उतरा, आते ही तुरंत ओवर प्रोटेक्शन के लिए वो तौलिया लाके उसमें लपेटेंगे, उसको खाने के लिए कुछ देंगे, एंड विदाउट नोइंग द रूल्स और द प्रोटोकॉल, समटाइम द एथलीट और द प्लेयर इज बीइंग पेनलाइज्ड एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल. तो थोड़ा सा उनको एजुकेट करने की भी जरूरत है. So answer question to refer the parents to the resources that will help them and learn more about the sport. यदि आप थोड़ा करेंगे तो उनका भी involvement बना रहेगा, and rather they will also give a kind of reinforcement for you parents, and develop a code of conduct for the parents. लेकिन ये जरूर उनकी boundary limits, please try to set the limits, develop rules for parents, conduct and the competitions, event, and share the rules with the parents. कई दफा टीम लेके जाते हैं, आप स्कूल की टीम लेके जा रहे हैं, पेरेंट्स दुनिया भर के वो कहेंगे बेटा ये खा लेना, ये नहीं खाना, अकेले नहीं जाना, दुनिया भर के. ओके, दैट्स द पेरेंटिंग केयरिंग एटीट्यूड, बट वंस वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी
वो कहते हैं तुम एसी वाले रूम में रुक जाना, तुम उस ट्रेन में एसी क्लास में चले जाना, गर्मी नहीं मरना, ऐसे जनरली पेरेंट्स का वो यंग एज में जिसमें आप लोग डील करते हो, ऐसी बहुत कॉमन समस्याएं आती हैं। बट एज ए कोच ये आपको डिसीजन लेना कि फॉर यू द ऑल प्लेयर्स द एवरी मेंबर इज इक्वल फॉर यू and assure them that every child will be taken adequate care of. They will not land up in any bad situation, and if something the parents will be even intimidated. थोड़ा सा भरोसा जीतने की तो जरूरत रहेगी, बट एक लिमिट तक ही उनका इंटरवेंशन हो, उससे ज्यादा नहीं हो, उनको एजुकेट कर दिया जाए। और कई मैंने देखा है जो टीम्स में वो पेरेंट्स के लिए वो एडवाइजरी जारी कर देते हैं कोचेस, सो समटाइम इट्स नाइस सो होल्ड ए पेरेंट मीटिंग at the start of the year कि बच्चा का suppose I am one of the parent and I hire the services of a coach, तो मेरा agreement कुछ coaches को लगता है कि I am paying you, you give me result. Is it possible? I think it's not so easily possible. and मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने एरिया तक लिमिट रहने की जरूरत है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी पेरेंट कोच रिलेशनशिप, थोड़ा सा उनको एजुकेट करने की भी जरूरत है। Try to encourage open discussion and meeting by directing questions at parents and allowing parents to ask queries. No worry, unke there may be apprehension, they may be having various kind of the apprehension in their mind कि ये क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्यों किया, मेरे बच्चे को टीम में क्यों नहीं रखा, वो स्टैंड बाय को आपने मौका दिया। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन यदि आप फोकस हैं, आपका अपना स्ट्रेटजी क्लियर है, कोचेस को भी आपने पेरेंट्स को भी आपने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है और आपने प्लेयर्स का भी रोल मालूम है कि हाँ इसका इस सिचुएशन में रोल आएगा, तो शायद हम सिचुएशन को सिमेट्रिकली मैनेज कर सकते हैं। एजुकेट पेरेंट इन पॉजिटिव मैनर एंड एस्टैब्लिश टू वे कम्युनिकेशन। रादर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे उनकी, तो थोड़ा सा ये भी अनबाइस हो जाए। कोशिश करें उनका भी व्यू जान लें, वो क्या चाहते हैं। मन में संशय ज्यादा आ रहता है, हमारे बहुत तरह के एप्रीहेंशंस होते हैं कि वो जाएगा, कोई सेफ्टी से कंसर्न है, किसी के खाने पीने से कंसर्न है, आप टीम्स के साथ में अब्रॉड जाना होता है, फूड कल्चर्स के बारे में डाउट्स रहते हैं, वो जेट लैग के बारे में बहुत तरह की क्वेरी करते हैं, क्योंकि वो उस गेम को कभी खेला है तो उनको अपनी जो एक्सपीरियंसेस बच्चे के इस दिमाग में डाल देते हैं। So these are very common issues. So please take adequate care, and once you will develop or you will succeed in getting their confidence, I'm damn sure they will surely cooperate with you. Yeah. The next. So these the working the styles that will help. So working with parents, acting as distractions. अभी आपके सामने मैंने कुछ बातें अभी ही शेयर करी थी. The parent acting as a distraction that many inherently negative affects players and that development through their involvement. ये उनको educate कर दिया जाए कि बच्चे की learning slow हो जाएगी यदि आपका intervention ज़्यादा होगा। आपके कुछ भी दिमाग में issues आते हैं that should reach to the coach, not directly to the player. वो क्या ऐसे issue हो सकते हैं? Negative culture at grassroots level and something like that. So if we all these three people, go ahead, no issue. Go ahead. So if we take this honors, like the athlete triangle, the player, the coach, the parent, so ultimately we have the common factor, and the player is also striving to get a success, parent is also trying to get a kind of success, and the coach is also. But the success, who defines success? What is exactly the success? Whether the winning is the only success, or the athlete development program is a success, whether your player is improving, so the performance is a success, or the winning is a success. So you jointly take a onus, the responsibility. If we really want to develop the athlete for long-term plan, so it should be a joint venture. Long-term athlete development program could be a better vision for the success, not only by winning a particular match or a particular tournament. Yeah, winning is no doubt, it's a good thing, everyone is striving, but it's not everything. इसीलिए कहा गया भाई जब तक खिलाड़ी है तो जीत हारना भी एक खिलाड़ी को, या हार के बारे में भी उसको टेस्ट पता होना चाहिए, हार क्या होती है। हाँ, हम तीनों का ये जॉइंट प्रयास रहे, एज ए पेरेंट, एज ए कोच, एज ए प्लेयर, तो शायद
वो ये समझ पाएगा कि हाँ मेरे आने वाले दिनों में मैं और भी ऐसी चीजें आएंगी, और ये तो एक मेरे को एक चैलेंज मिला है, एंड दिस चैलेंज आई हैव टुक इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन, दैट कोई फुटबॉल मैच खेला, कोई जंप किया किसी ने, तो जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी हर दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन यदि उसके अंदर ये हैबिट आपने डेवलप कर दी और उसको ये भरोसा दिलाया कि आपका लेवल जरूर इंप्रूव हुआ है, चाहे मैच आप हारे या जीते, डजंट मेक मच सेंस। लेकिन हमारे लिए जैसे अभी वो एक कोच वीडियो में आपने देखा था, वो एक कोच वाज बैडली शाउटिंग यूजिंग नॉट गुड वर्ड्स, एंड दैट पुट्स a kind of the demoralization to the, so please take care as a athlete, there should be credibility, जो आप कह रहे हैं उस बात में दम हो, विश्वास के साथ में कहें, there should be a positive direction jointly, and there should be a well in advance, and the informations, the techniques should be well defined, the logic should be known to the players, and consistency। एक सिचुएशन में आज तो आपने कोच ने कहा कि you should have kicked your player, ओपोनेंट को आपको हार्म कर देना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम उसी मुंह से उसी सिचुएशन में करें, आपने ऐसा ब्लंडर किया और टीम को पेनल्टी मिल गई और टीम बाहर, तो या बाहर चले गए, तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन योर सेइंग, so please think twice, and your action should be have a kind of symmetry in, you can say एक स्थिति में आपका निर्णय कुछ अलग हो रहा है, उसी जैसी आइडेंटिकल सिचुएशन में आप कुछ अलग कर रहे हैं, and listen to your players, listen the coaches, listen your parents, and give the precise and brief instructions, and strengthen what they have learned, and try to re-strengthen, try to push it hard, ठीक है अभी और कर सकते हैं, उसी को सपोर्ट करें जो चीज उसकी अच्छी हुई है, so that becomes the mastery, slowly the coach will or the athlete will get a mastery over that skill. Yeah, next. So yeah, now you can see this model itself very crystal clear, it has been defined or nicely explained. हमारे young age में क्या कहा गया है, the fun should be the outcome of any physical activity. So if it is a developmental model, what I use the word the long development athlete development model, then there is a fun development and the commitment, it should be there. But if it is a professional model, the triangle is vice versa, that is being managed by coaches, वो सारा का सारा strategy वो plan करते हैं, everything, every plan, the role of parents is not much, athletes is totally guided and is solely dependent, but that is for the professional purpose, like you are playing some world championship, top level elite players के, वो इस second model के ऊपर ज़्यादा focus करते हैं, whereas the youngsters, as we people are dealing with developing athletes, so this model is more suitable, where you are taking in concurrence with your parents and coaches, provide supportive role to the athlete, that is coach, parent, and ultimately you are targeting to the athlete. तो ये मॉडल में आपको बहुत अच्छा डिफरेंस नजर आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पिरामिड देखिएगा, वो कोच फोकस है और एथलीट उसका सोर्स है, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कोच एंड द पेरेंट्स द एथलीट इज नर्चरिंग, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ एनी कोच यू हैपन टू बी कोच, आप क्या टारगेट देंगे अपने खिलाड़ी के लिए, क्या क्या चीजें तय करते हैं? हम तय करते हैं इंफॉर्मेशन किस आधार पे होती हैं अपनी, हम जानकारियां देते हैं, लाइक आइदर इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस गोल। सपोज आज आपका एक सेशन अटेंड करने के लिए आपने प्लान, पूरी टीम के लिए प्लान किया है, दैट टुडे इज योर दिस टास्क, so the qualifying time has, suppose somebody is swimming, what time, so you are putting a benchmark, that is the performance goal, that is measurable. There could be another goal, like we call the training goal. आज आपका ट्रेनिंग के अंदर this many, the repetition, this many sets or this much weight you have to do with this much recovery, this much rest, and total volume will be this much, and the load is of medium level or the high level, and at the end could you finish that workout, the entire your training has finished. तो ये आपके लिए आप
टारगेट देते हैं खिलाड़ी के लिए, एज ए कोच होने के नाते क्या टारगेट सेट करते हैं? तो या तो परफॉर्मेंस का टारगेट दे सकते हैं, ट्रेनिंग गोल का टारगेट दे सकते हैं, और ए टेक्निकल स्किल गोल, कि किसी की परफेक्शन लेना है। basketball, you are asking your player to make a 100 shot from the 45 or the 90 degree, or from 0 point, so or 3-point shooting, how much, so learning a specific skill, जिसकी आपने एक टारगेट सेट करके दिया है। आपके सामने एग्जांपल यहाँ किसी का दिया कि एथलीट खुद से इसको कैसे मैनेज करे। So your either performance goal or training goal or technical goal or the psychosocial skills, खिलाड़ी को ये गोल दिया, हार को बर्दाश्त करके अपने पांव से बाहर जाने की क्षमता भी हो उसमें, वो मुंह छुपाने की टारगेट नहीं है। Purposefully you have created a stimulus, a environment where athlete has been defeated, but still with the grace athlete is able to come out. यदि तो ये उसको सिखाया गया है, and in real sense athlete face this kind of the load in actual situation, athlete will manage it very carefully. लेकिन उसको हार नहीं और ये स्टिमुलस नहीं दिया गया अपने ट्रेनिंग प्लान के अंदर, तो वहां पर उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी अपने कोचेज का ट्रेनिंग पार्ट में एक साइको सोशल स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरी है, कि वो इंडिपेंडेंटली, मीडिया है तो मीडिया को बाइट दे पा रहा है, इवन द एथलीट हैज लॉस्ट द मैच और द इवेंट और द परफॉर्मेंस। तो अपने पाँव में खड़े होने की जो स्टिमुलस आपने तैयार करवाया है वो भी बहुत जरूरी है, and we call it is pack their own bag, ability to handle the emotions you had. Yeah, next. So अब आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाया भी गया है, और मैं इसको बहुत ही सपोर्टिव वे से इसको इंटरप्रेट करने का वो मेरा the collaborative effect. You can see the linkage. The thick line indicates primary relationship. That's very important. And a dotted line represents, yes, it is important, but not that important is primary relationship. तो देखिए जनाब, एक मॉडल है आपका कोलैबोरेटिव मॉडल, जॉइंट एफर्ट। बोलते हैं कि कोई काम को मिलके करने में जो आउटपुट मिलता है वो शायद वन वे डायरेक्शन में शायद उतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स, the collaboration of parents, expertise recognized and welcome, and coach is expert, like an example here is mentioned, like coach is known in the specific skill, coach वो जानता है, और parents भी उसको compliment दे रहे हैं। Yeah, anything, Sujit? So coach role relationship to others, उनके संदर्भ में क्या है, वो औरों के साथ कैसे मैनेज करेगा। मैं कोच हूं तो अब मुझे ये भी ध्यान देना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जो टारगेट सेट किए हैं, लाइक प्रिंसिपल, मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हैव आई टेकन द एडिक्वेट परमिशन और द प्रोसीजरल प्रोटोकॉल रिगार्डिंग, और हैव आई मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स, लाइक लर्न टू एक्सपेक्ट द मैनेजमेंट फंक्शंस दैट यू हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। कौन सी दिनों में क्या इवेंट होने वाली है, रेनी सीजन में क्या इवेंट्स होंगे, विंटर्स में क्या होने वाला है, and have you arranged everything before the commencement of your tournament or your event? Are you organized? Keep the administrator informed. बॉस को पता रहे आज स्कूल के अंदर, आज क्लब के अंदर ट्रायल है, आज सिलेक्शन ट्रायल है, इतने बच्चे रिपोर्ट करने वाले हैं, बाहर की स्कूल आने वाली है, कौन से महीने में लोग बाग आएंगे, बच्चा कब टूर्नामेंट खेलने जाएगा। So this protocol, that if you have planned everything, you will not land up in a very bad position. आप मैनेज कर पाएंगे, और कितना आपका रिसोर्सेज है, फंड्स आपके लिमिट्स में है या नहीं है। आपने ऐसा कोई आयोजन कर लिया और जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड नाउ दे आर फायरिंग ऑन यू, तो इस चीज की भी होमवर्क करने की जरूरत है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ में टाई अप करने की जरूरत है। दूसरा, अदर कोचेस के साथ में प्लीज डू कॉम्प्लीमेंट्स और फेलो कोलीग्स, फेलो प्रोफेशनल। ऑफ कोर्स दे आर कोच ऑफ अदर टीम, बट इट डजंट मीन दे आर आवर एनिमी। इसी से ही वो एथिक्स सीखते हैं कि गिव ड्यू रिस्पेक्ट and role of your other coaches or the fellow coaches, like officials, umpires, referees, or the managers, जो भी आए हैं उनको आप do respect दे, उनके साथ में tie up रखें। You can have the healthy, the competitive spirit, but not jealous.
असाइन पोजीशन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, कौन सा काम किसको दिया जा सकता है, किस कोच की जिम्मेदारी ये लगाई जा सकती है, ये तालमेल आप में बैठाने की क्षमता है नहीं है। एंड help to prepare for any program, prepare to the skill, prepare to conduct a competition, उसमें मदद करें और उनके कम्युनिकेशन बना रहे आपको कि ये तो आपका शो है, आप जानो, I have no interest, this is your show, go ahead, I least care. No, I personally believe, please, if we extend the support of our fellow colleagues, certainly vice versa in days to come, you will also receive properly get the response from them. Provide formal and informal evaluation. यदि कोई जिम्मेदारी दी गई है, recognize and assistant coaches and contribution to team, उनका सम्मान करें, उनको ऑनर करवाइए। देखिए साहब, आप क्रेडिट सारा खुद लें तो ये एक तरह का जेलेसी सिस्टम डेवलप करता है। आप दूसरे को वो सम्मान दिलाएं, वो सम्मान अल्टीमेटली इफ यू आर ऑन हायर पोजीशन, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके कैप्टन्स, इफ दे you give them due credit, ultimately as a head coach or the main coach or the chief coach, you will get the credit. लेकिन हम सारा क्रेडिट खुद ले लें तो आपको सपोर्ट साइड कम मिलेगा। So how to be an influential coach? तो इसके लिए हमें एक ओनरशिप लेने की जरूरत है। Have a athlete developmental philosophy, जो पहले ही स्टार्टिंग में ही मैंने यही बात का प्रयास किया था। आप अपने जीवन में अपनी एक फिलोसफी बनाएं कि मेरे खिलाड़ी के लिए क्या ठीक है, और ये फिलोसफी किसी फैक्ट्स के ऊपर होगी, ना कि हाइपोथेटिकली अज्यूम्ड होगी, कि एथलीट सेंटर्ड, साइंस बेस्ड एंड कोच ड्रिवन फिलोसफी पे आप भरोसा करें। आई एम रिपीटिंग, एथलीट सेंटर्ड, पहले खिलाड़ी, साइंटिफिक सपोर्टेड के ऊपर वो आप अपना विजन बना रहे हैं, एंड कोच उसमें अपना डायरेक्शन दे रहा है। यदि ऐसी आपकी कोई भी प्लान, आपका स्ट्रेटजी है, दैट्स यू हैव बेटर फिलोसफी एंड बी ए रोल मॉडल। हम अच्छा का भरोसा करें लेकिन हम बर्ताव बुरा कर रहे हैं, तो फिर मान के चलिए साथियों कि आप दूसरे के लिए खाई खोद रहे हैं और उम्मीद करें कि आप हमेशा सेफ रहेंगे, आपके लिए कोई हिंच नहीं आएंगे। इट्स मिसकंसेप्शन। वो यदि आप कहीं खराब कर रहे हैं तो वो घूम फिर के आप तक आएगा, और यही फिलोसफी में कहा भी गया। सो हैव साउंड नॉलेज अबाउट योर ओन स्पोर्ट, उसकी टेक्निकलिटी को समझें, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस को समझें। सो कंसेंट टू द एथलीट, मतलब आपके जैसे से भी लगे आपका अपना खिलाड़ी सबसे प्राइम प्रायोरिटी है। यदि ऐसा भरोसा आप जीत पाते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड फोकस ऑन होलसम डेवलपमेंट ऑफ एथलीट, सिर्फ एक खेल के लिए नहीं कि बस ये बाय अनफेयर मींस बाय हुक एंड क्रॉक वाली फिलोसफी से बचें, बाय फेयर प्ले वाली फिलोसफी को अपनाएं कि उसको ड्रग्स से बचा के रखें, ड्रग्स वगैरह से दूर रखें, उसकी जो नेगेटिविटी है ऐसा इन्वायरमेंट से बचाइए उसको। और इसी के लिए जो पानीग्रह साहब अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया है कि जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, क्या गाइडलाइंस है, आप देखिए इस स्लाइड में आपको होपलेस रूल्स जो बताए गए हैं ये बहुत अच्छे हैं। मतलब ये आप चाहो तो अपने कोचिंग फील्ड या आपकी एकेडमी या आपके स्कूल में टांग लीजिए कि पर्पस क्या है, व्हाट होपलेस दिस कमांड सेज, आई एम हियर टू सर्व यू, your commander, mentor, companion, and the brothers in arms you that are there. When we are facing the enemy, I will be in front. When the enemy is behind us, I will be watching yours back. जैसा आपको बताया था शुरू में भी इस बात का, ये बहुत बहुत important है। I will remind you that each of you are responsible to and for one another. You must be ensured that I remember that I am responsible to and for all of you. ये यदि इतना भरोसा जता पाते हैं कि मेरी टीम, वो चक दे इंडिया वाली मूवी अपने खिलाड़ियों को बार बार दिखाई जा सकती है, वो अपने आप में इस वाले टॉपिक के लिए वो रेलिवेंट मूवी है जिसके ऊपर एनालाइज किया जा सकता है। I will give you the loyalty, integrity, trust for free and I must earn from yours. देखिए ये तो म्यूचुअल है, आप अपने खिलाड़ियों का इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, अल्टीमेटली यू विल अर्न फ्रॉम देयर साइड आल्सो। एंड प्रोफेशनलिज्म नो शॉर्टकट। दोस्तों शॉर्टकट कुछ नहीं होता खेल में, रिजल्ट्स बहुत देर में आते हैं, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। सो देयर आर नो रनर्स अप इन योर बिजनेस, दैट हैज बीन सेड, राइटली सेड बाय होपलेस। योर जॉब इज टू सोल्जर एंड माय जॉब इज टू एम्पावर यू to do your job to the best of your capability. यही एक कोच की निशानी है।
उसके पोटेंशियल को करना उसी नहीं है, बट ऐसा माहौल तैयार करना है अपने को मिलके कि वो वहां से पीछे हटने का प्रयास ना करे, उसका खुद का मन करे कि यस कोच आई एम रेडी फॉर माय ट्रेनिंग, प्लीज टेल मी, प्लीज एडवाइज मी। जब तक ये भावना खिलाड़ी से शायद निकल के नहीं आएगी तो हम फोर्सफुली कराएंगे तो हमें उतने बेहतरीन परिणाम नहीं मिलेंगे। When I ask you to do something, know that I do so because you are the best person to do it. इसी से कहा जा रहा आप इस वाली पोजीशन पे खेलिए, तो ये इस बेसिस पे कहा जा रहा कि आपसे बेहतरीन और कोई करने वाला नहीं है, उस पोजीशन के लिए, उस रोल के लिए आप सबसे बेहतरीन हैं। यदि इतना भरोसा आप खिलाड़ी में दे पाते हैं और वो आपकी बात को मानता है तो दोस्तों मान के चलिए आप जो आपकी टीम है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सक्सेस इज योर्स क्राउन, वो कह रहा है कुछ, एंड वियर इट विथ मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, ये बहुत अच्छी बात कही है। एंड फेलियर इज माय बर्डन, यस ऑनर्स, आप लें उसकी असफलता की जिम्मेदारी लें कि हाँ साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, एंड फॉर इट विल बी आई हु हैज फेल्ड यू। आपके अंदर ये पोटेंशियल था बट मैं वो पोटेंशियल को बाहर निकाल नहीं पाया, ये ऑनेस्ट एक कोच में भी लेने का जज्बा है, तो आप भरोसा रखिए यू कैन बी अ रोल मॉडल, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट एंड यू आर योर फैमिलीज, व्हेन यू आर अवे योर फैमिली बिकम्स और फैमिली। ये जिम्मेदारी है, आप जाइए खेलने के लिए जाइए, टीम बाहर जा रही है, निश्चिंत रहिए, परिवार की सुरक्षा, उनका ध्यान वो हमारी जिम्मेदारी है। इतना यदि आप भरोसा जीत पाते हैं, क्योंकि आप एक एसेट है, एसेट आप अपनी स्कूल के लिए हैं, एसेट आप अपने स्टेट के लिए हैं, एसेट आप अपनी कंट्री के लिए हैं, और अब आपका सारा जिम्मेदारी एज ए कोच हम और पेरेंट्स समाज के साथ मिलकर ले रहे हैं। यदि ऐसा भरोसा दिला पाया, ये रूल बहुत ही फंडामेंटल रूल को तौर पे मैं मानता हूँ। यू आर एंड योर जॉब इज ए प्रोफेशनल एंड प्रिविलेज दैट आई मस्ट री-अर्न एवरी डे। सो साथियों, मुझे लगता है यदि हम इस hopeless rule of command, if you take a ownership from this small interaction, क्योंकि आप लेट हो रहे हैं, I think this was time bound from my friend, तो ultimately what we are concluding, हमारा प्रयास ये था इस प्रेजेंटेशन का कि हम किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, हम एज ए एथलीट को कि कैसे डील करना है पेरेंट्स के साथ में, हमें कोचेस के साथ में, हमें एडमिनिस्ट्रेटर के साथ में और हमें सोसाइटी के साथ में। ये जो कोहेजन की फीलिंग लेके आनी है, यूनाइटेडनेस, वीनेस, और ये आएगी आपकी अपनी स्टाइल के ऊपर। स्टाइल कैसे बनेगी? स्टाइल आपकी अपने जो हैबिट्स हैं, जो आपके अपने इनबॉर्न क्वालिटीज हैं, और वो आपको एक फिलोसॉफी देंगी। और हर कोच को ये देखने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि यार मेरी फिलोसॉफी क्या है। माय फिलोसॉफी यही है कि मेरा खिलाड़ी आज का मैच जीत के आ जाए। क्या मेरा ये पर्पस है कि खिलाड़ी का मैं इंप्रूवमेंट करूं? क्या मेरी ये फिलोसॉफी है कि भाई हुक एंड क्रुक में मेरा खिलाड़ी बस ये मैच निकाल ले? क्या मेरी फिलोसॉफी है कि मैं अपने खिलाड़ी को जॉब दिला दूं? ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं, बट व्हाट इज गुड फॉर यू ये आपने तय करना है। इट कैन नॉट बी कॉमन फॉर एवरीवन। सो फ्रेंड्स, a community coach must be a good role model for their athletes। तो ये आप अपने आप में देखें, जो आप कह रहे हैं वही आप करें। आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस एकदम से ना करें अपने खिलाड़ी से। हर एक चीज का एडेप्टेशन प्रोसेस में टाइम लगता है, तो हैव पेशेंस, ऑब्जर्व इट, हैव गुड कम्युनिकेशंस और हैव फीडबैक, रीडिजाइन योर प्रोग्राम, गिव ए पॉजिटिव फीडबैक। बहुत सारी चीजें एक साथ उसको क्रिटिसाइज ना करें, पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म डेवलप करें। फॉलो अप्रोप्रिएट कोचिंग स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बताया कि हो सकता है आपको कुछ जगह कमांड करनी पड़े, हो सकता है कुछ जगह आपको लिबर्टी देनी पड़े, हो सकता है कुछ जगह आपको उन्हीं पे छोड़ दिया जाए। तो प्लीज यू शुड बी हैव ए कॉप अप एज पर योर सिचुएशन, हाउ यू कैन मैनेज इट। मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। दुनिया में सबसे बड़ा यही चैलेंजिंग काम है कि आपका खिलाड़ी, आपने दूसरे को हैंड ओवर किया है, आज आप कोच हैं, सो हाउ एट बिगिनर लेवल यू आर ट्रांसफरिंग योर प्ले टू द नेक्स्ट। आप हमेशा आप ही उसको एस्कॉर्टिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, आप दूसरे को हैंड ओवर करेंगे, आप उनको फर्दर कनेक्टेड रहेंगे, आप उनको अश्योर करेंगे, तो इस चीज की आपका रिलेशन है वो फॉर एवर है। कोलैबोरेट एंड नेगोशिएट विद पेरेंट्स इफेक्टिवली।
देखिए पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिए हम कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उनका भरोसा, उनका विश्वास के साथ ही ये कर पाएंगे। इसीलिए मैंने शुरू में शब्द का इस्तेमाल किया था, हम एक तरह के मैजिशियन हैं, मदारी हैं, और हमें अपना शो चलाने में बहुत तरह के हथियार, मतलब हथियार का मतलब है बहुत तरह की ट्रिक्स आजमानी पड़ेंगी। कोई सी ट्रिक हो सकता है फेलियर हो जाए, तो कोई सी ट्रिक सफल भी हो सकती है। मस्ट हैव ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है कि आपका कहीं ना कहीं वो निखर के आया है, जो आपने सिखाया वो उसके काम में आ रहा है, वो उसका बेस बना है और उसको भरोसा बना है। और अब आप बेसिक चाहे उसको नेक्स्ट लेवल कोच के पास ट्रांसफर कर पा रहे हैं, उसको ऑब्सेसिव ना हो कि ना इसका तो मैं ही कोच रहूंगा। प्लीज अवॉइड, डोंट मेक योर प्लेयर एज योर ओन प्रॉपर्टी, पास इट टू द नेक्स्ट स्टेज, द नेक्स्ट लेवल, एंड हैव ए हेल्दी रेपो, टेक अप ownership and inspire people around to stay positive and give their best. I'm sure somehow this little presentation may help, may contribute. I do not know much, but I am there for another few minutes to have direct queries. And I'm really thankful that Sujit and Usha madam, they have managed and fantastic the PowerPoint presentations for you people in terms of the literature. Thank you. Thank you so much, sir, Thank you, sir. for a wonderful presentation. Now, sir, here we have some questions regarding the session. So I'll just take first question. The first question is like as we saw two different videos, one for white coach and one for good coach. Yeah. And the many of the participants, they just wanted to ask, like, sometimes what happened that teachers, PE teacher and coaches, they are over enthusiastic to win the matches, especially when they have to prove to their administrator, to their principals, or so sometimes they have to react, but not for every time. So what do you suggest, sir? Can we say that is bad coach or? दोस्तों, you are true, 200% correct, Dr. Gangwar. I really appreciate your apprehension कि भाई हमें ये लगता है हम यदि वहां पे उनको वो नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए दो तरीके हैं, इंस्पायर करना और स्कोल्ड करना। आपको लगता है कि मुझे ये डांटने से ये आउटपुट आ रहा है, बट वो डांट किसको रहे हैं? देयर आर प्लेयर, देयर innermost potential come out in the situations where someone has challenged them, their ego is being challenged. तो वो आपका स्पेसिफाइड क्लाइंट हो गया, स्पेसिफाइड आपका ट्रेनी हो गया, बट उसी ही कंडीशन में एक दूसरे को कह दिया he may be in tears, she may be in tears. तो वो कहते हैं ना कि एक ही स्टिक से सबको नहीं हाँक सकते, यू कैन डंडा सब पे एक ना चलाएं। ये आपको जो रिलेशनशिप की बात है, who can take your gesture in even from the hard language. Some athletes, some players, they take it very in the inspiration way, but where others not. So please first understand, develop a repo. जब आपका रेपो बन गया, खिलाड़ी का भरोसा। देखिए मैं एक खिलाड़ी को हक करता हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक बात रखता हूँ, and one player likes to that someone hugs, and that gives a feeling of like my parents that take care. But हो सकता है दूसरा खिलाड़ी they may not like your hugging, ये मानते हैं। तो अब हम दूसरे पे साथ में यही बर्ताव किया, हम फीमेल एथलीट या फीमेल प्लेयर के साथ में, you are coach, you are taking as a father figure from your side, it's fantastic, but society में ये उसका रिफ्लेक्शन जिस वे में आपकी इमोशंस है, that may not be presented, that may not be accepted by society. तो ये that cannot be common. तो जो आप कह रहे हैं कि जो कोचेस को अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, अपने मैनेजर्स को या अपने जो हायर अथॉरिटीज को ये प्रेज करने के लिए कि साहब जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं, देखो मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ ट्रेनिंग में, that can be with positive gesture. Your involvement, your activeness is still with your the gesture you are showing, the communication, the non-verbal communications. So your engagement is known. और खिलाड़ी आपका वो दे रहे हैं, yes coach, yeah I will do this time. आप इंडिकेट कर रहे हैं use this technique, and वो उसको फॉलो कर पा रहा है, that's fantastic.
यस यस, थैंक यू सो मच सर. सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, अभी क्वेश्चन बॉक्स सेक्शन में देखा. मिस्टर सत्यजीत, ही जस्ट वांटेड टू आस्क कि सर बहुत सारे बच्चों का अलग अलग मेंटालिटी है, एंड बहुत सारे मतलब बच्चों को अलग अलग तरह से, जैसे आपने बोला, तो उनको हम कैसे ट्रीट करें? इज देयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज वी हैव टू यूज फॉर अ टीम, फॉर अ ग्रुप, मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में वो आप पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात 200% सटीक करें. हमें एक स्ट्रेटजी नहीं हो सकती. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सोशियोग्राम रहता है, मैडम लोग तो जानते हैं, सुजीत साहब जानते होंगे. द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, आप देखना चाहते हैं कि आपकी टीम में किसकी बात को, या कैप्टन है या वाइस कैप्टन है, कौन ज्यादा पॉपुलर है, किसकी बात को सभी लोग उनके साथ में अच्छा रिलेशन है, तो आप कैसे स्पॉट आउट करें? आप एक सोशियोग्राम बना सकते हैं. देख सकते हैं कि भाई ए बी को लाइक करता है, बट ए का कनेक्शन सी के साथ में नहीं है. फिर ए का कनेक्शन जेड के साथ में है, लेकिन जेड ए को उतना लाइक नहीं करता है. तो ये सोशियोग्राम का एक बना एक पैटर्न आता है, एक क्वेश्चनर रेटिंग स्केल काम करता है, और उसके हिसाब से आपने तो पहले तो मोस्ट पॉपुलर ग्रुप्स में जो आपने आइडेंटिफाई कर ली, जो बात आप कहना या करवाना चाह रहे हैं, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू दोज पीपल. उन्हें पता भाई ये कोच कहेगा, उनको शायद हो सकता है बुरा लग जाए कई दफा, लेकिन उनका साथी है, उसी एज का है, तो यदि आपने एक ये ट्रायल मोड अडेप्ट करके देखा, आपको कुछ बेहतरीन परिणाम मिले, उदाहरण के तौर पर. लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सब जगह ऐसा ही सिस्टम काम कर जाएगा. आपको दूसरी जगह आपने जिम्मेदारी ली, भाई वो कहते हैं कि मेरे साथी कहेगा मैं आई विल नॉट लिसन, बट इफ माय कोच से आई विल लिसन. देखिए आप आगे ना, बिकॉज जब हम ये मान के चलते हैं, हम कोई मटेरियल को डील नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को, एवरी ह्यूमन बीइंग इज वेरी यूनिक. ये तो हम मान के ही चले. पहला सिद्धांत है कि गंगवार साहब में कुछ अलग खूबियां होंगी, तो पानीगढ़ साहब में कुछ अलग होंगी, जो मैडम उषा जी हैं उनमें कुछ खास अलग ट्रेट्स होंगे. अब जरूरी तो नहीं कि भाई जो आप में है वो एग्जैक्टली वो ट्रेट्स, लेकिन हम एक कोच होने के नाते हम कॉमननेस देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ तक तो सब लोग एक्सेप्टिव हैं, जो मेरी टीम के सारे मेंबर मेरी बात को उतनी स्पीड के साथ ले रहे हैं, बट इसका इफेक्ट कौन जो मेंबर है वो आपने देखा भाई. यस, विथ योर एक्सपीरियंस, विथ योर जेस्चर, विथ योर लॉन्ग इंटरेक्शन, आप पहचान गए कि यस, माय दिस कमांड इज नॉट लाइक्ड बाय वन ऑफ द टीम मेंबर और द टू ऑफ द टीम मेंबर. Now off the record, out of this the whole team, now you have 1:1 rapport. So develop a relationship. और इस relationship के बारे में ही जो 5 fundamental rules में सबसे पहला काम था, developing relationship. और उसके लिए की एलिमेंट है, यदि आप लोग मुझे अलाउ करें, टाइम दें, तो मैं वो एलिमेंट भी आपके सामने बता सकता हूँ कि ये जो 5 ऐसे बिल्डिंग अप रिलेशनशिप में क्या काम आने वाले हैं, वो कैसे काम आते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है. इसमें सबसे पहला काम करता है, डू आई हैव टाइम? Sure, sir. You can continue. We have 6-7 minutes. देखिए जो आपकी क्वारी आई है उसी के संदर्भ में कि कौन मेरी बात को मानेगा, कौन मेरी बात को नहीं मानेगा. अब इस बात की कोई कोच के पास में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो आपने क्या किया, पहला बी कॉन्फिडेंट एज ए कोच इन फ्रंट ऑफ योर एथलीट्स. आप कोच हैं, आपको भरोसा, आपकी स्किल्स जानते हैं और वो इस चीज को रियलाइज करते हैं. अब ये कैसे आएगा, आपकी कोचिंग की एबिलिटीज, जो कोचिंग आप सिखा पा रहे हैं. So you could generate the confidence, and that's you have learned professional as a professional. जो सबसे आसान बात अपने साथ में क्या है, स्माइल. That's no cost. आप थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुरान भी रख लेंगे, your trainee will feel ease. वो टेंस में नहीं होगा. And have eye contact with each and every member of your team. हर एक को लगेगा तो उसको लगता है भाई कोच is not ignoring me, he is talking to me. जो आप कह रहे हैं तो उसको लगता है हाँ ये मेरे से बात कर रहे हैं. आप 2 लोगों से फोकस कर रहे हैं, 10 लोग साइड में ऐसे ही खड़े हैं, and a whole conversation or whole communication has been done with only 2 or 3 people. The rest they feel that they are ignored, so they feel they are less important. इसका ध्यान रखा जाए. So please try to develop the habit with interaction with every member. So interest in all, respect for each athlete. और सभी के लिए सम्मान हो, सभी का इक्वल. यस, किसी ने कंट्रीब्यूट किया बात में तो उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो जूनियर प्लेयर ही क्यों ना हो, वो नोविस ही क्यों ना हो, वो आप ये कह सकते हैं सबसे लेस कंट्रीब्यूटर क्यों ना हो टीम का, बट उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस यदि आप रिगार्ड देंगे एंड उसको लगेगा मैं भी इस टीम के लिए यूजफुल मेंबर हूं. आप यूज एथलीट्स नेम, उसको बोले अरे तुम इधर आओ, तुम चले जाओ, रेड जर्सी, दैट शोज दैट यू हैव नॉट हैविंग मच अटैचमेंट विद दैट. लेकिन आप कहेंगे भाई गंगवार साहब आप 2 मिनट का समय देंगे, आप 2 मिनट आएंगे,
सुजीत साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो मैं कहूँ स्पीकर्स, द प्रोफेसर्स, तो आपको लगता है भाई ये सभी लोगों के लिए कॉमन बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका नाम लेके कहता हूँ, लग रहा है कि हाँ इस मेरे टीचर, माय कोच इज कॉलिंग मी बाय नेम, सो दैट शोज द एफिनिटी, उसका भरोसा कायम करता है। एंड कोच एथलीट, वी कॉल इट इज कोच द एथलीट रादर देन कोच स्पोर्ट्स। इस वर्ड का मीनिंग ये हो गया, हम एथलीट को कोचिंग दे रहे हैं, ना कि जो आपका जो स्पोर्ट है वो उसके लिए कैसे सुटेबल हो रहा है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी क्या हो सकता है। वो आपका फुटबॉल खेलने आ रहा है लेकिन वो बास्केटबॉल के लिए ज्यादा सुटेबल हो खिलाड़ी, तो आपको एक अच्छा कोच होने के नाते आप रिकमेंड कर सकते हैं कि बेटा आप जबरदस्ती मेरे गेम में फिट, शायद आपकी पोटेंशियल दूसरे गेम के लिए और अच्छी हो सकती है, आप उसको भी आजमा सकते हैं, ना कि जबरदस्ती आप उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो ये अपने जो कोचिज फ्रेटर्निटी के अंदर ये बहुत कहा गया, हमारी जो वर्ल्ड एथलेटिक बॉडी है वो इसको बहुत एम्फेसाइज करती है। वो कहती है कोच द एथलीट रादर देन कोच एथलेटिक्स, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस बात में आप भरोसा रखेंगे। मुझे लगता है कि शायद आपकी जो बात है कि टेलिंग स्किल ऑफ कोचिंग, जो आप बता रहे हैं वो मुंह से बता पा रहे हैं कि आप एग्जिबिट कर पा रहे हैं, कि आप डेमो कर पा रहे हैं, आप अलग अलग डायरेक्शन में, तो खिलाड़ी को ये तो लगता है कि मेरा कोच जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन करना जानता है, उसकी उसके ऊपर कमांड है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना भरोसा हो गया, आपने एक एक सीढ़ी तो पार कर ली, फिर आप उससे बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट ले रहे हैं, आप उसका रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। नाउ you have succeeded in developing the relationship. So that's one of the strategy. Thank you, sir. Before going to Suji sir for next question, एक इसी से related एक और question है सर मिस्टर विजय कुमार जी का। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, स्पेशली सर बच्चों की परफॉर्मेंस को लेके, तो कोचेस को वो मतलब लाइक बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं डायरेक्टली, नॉट थ्रू द स्कूल, नॉट थ्रू द सिस्टम, दे डायरेक्टली प्रेशराइज कि भाई हमारा बच्चा नहीं खेल पा रहा, हमारा बच्चा नहीं खेल पा रहा, उनका बच्चा खेल गया। तो ऐसा करके सर वो हाउ वी द कोचेस और द पीटी शुड नो। यस, ये बात आपने सुजीत साहब ने बहुत अच्छा, इसका पहले से ही वो रेपो के अंदर डाला हुआ है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन का रेफरेंस भी दिया हुआ है, और मैं उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। देखिए, जब तक साहब हम उनको एजुकेट ही नहीं करेंगे, उनको सिस्टम के बारे में बेसिक्स नहीं बताएंगे, इसीलिए कहा गया भाई स्कूल में होता है पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, क्यों लेते हैं साहब? स्कूल वाले अपने लोगों को बुलाते हैं वीकेंड्स पे या मंथ में एक दो दफा अपना रेगुलर इंटरवेंशन बना रहे हैं। एक कोई बहुत सीनियर अधिकारी है, उसका बच्चा आपकी एकेडमी या आपके स्कूल में, और वो बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट वो आपको फोन करते हैं, मेरे बच्चे को खिलाओ, यार कुछ नहीं सीखा। अब आप सिर्फ उसी का सारा ध्यान उसी बच्चे पे लगा लिया कि हाँ यार वो कहीं ऑफेंडेड फील ना कर जाए, मेरे को उसको टीम में रखना है। अब आप क्या होगा, मैसेज क्या गया? मैसेज इस बात का गया कि भाई यदि तो कोई पावरफुल वाला है वो तो टीम में खेल लेगा, तो अल्टीमेटली रोल मॉडल तो हम नहीं बन पाए, लेकिन उसको लगेगा भाई आपने जो भी हायर पोजीशन या हायर पोस्ट की वजह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उनको 1:1 बोला, सर प्लीज इफ यू अलाउ मी विथ ऑल डिग्निटी, विथ ऑल जेस्चर, गिव मी 10 minutes टाइम and let me brief about the technicalities of our sport. हो सकता है उनको कुछ हेजी आइडिया होते हों, हर आदमी यहाँ इंडिया में कोच बन जाता है, हर आदमी मतलब डॉक्टर बन जाता है, तो ये एक बड़ी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आई नो एवरीथिंग। अब आपने उनके साथ में एक सेशन लिया, हो सकता है पहले जनरल लिया, लेकिन जो कुछ इस टाइप के लोग आ गए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आपने 1:1 सेशन लिया, सर मेरे को आप आधा घंटे का 10 मिनट का टाइम दे दें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू। आप गए, आपने बात करी कि देखिए साहब ये हमारा सिस्टम काम करता है, बच्चे का पहली रिक्वायरमेंट उसकी जो स्किल्स वीक है या उसका ओवर बॉडी वेट है या कोई एक एरिया जो आपने ऑब्जर्व किया वो वीक, जब तक ये रेक्टिफाई नहीं करेगा नेक्स्ट लेवल की आगे की स्किल बिल्डअप नहीं होगा, और यदि ये इस कंडीशन में खेलेगा इसकी इंजरी होने के चांसेस बढ़े रहेंगे। तो आपने उनको एजुकेट किया, आपकी प्रोसेस बताई, आपका प्लान क्या कि साहब अब मैं इन 3 महीने में इसको इस स्टेज तक लेके आ जाऊंगा कि वो लेवल की टीम में आ जाए, नेक्स्ट लेवल में वो अगले साल या 2 साल तक कंटिन्यू करेगा, तो ये स्टेट टीम में इसका पूरा पोटेंशियल है। और डाटा जो आ रहे हैं वो आप शेयर करते जाएं, और उनका भी जब कंपेयर करके दिखाएंगे तो काफी हद तक पढ़े लिखे लोग आगे हायर पोजीशन वालों को काफी हद तक कुछ चीजें समझ में आ जाती है। हाँ, कुछ होते हैं जो और प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जिनका इंक्रोचमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इनको आपको ये नहीं भाई उनके लिए अपने सिस्टम को बदल दें, कोई जरूरी नहीं है, यू आर द रोल मॉडल एंड द डिसीजंस विल बी योर्स।
अप टू सर्टेन लिमिट विथ योर मोडेस्टी आपने डील किया, उसके बावजूद भी वो ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं, तो जो आपने एक गाइडलाइंस जारी करी है वो सबके लिए देने साहब देखो हम इससे बंधे हुए, और आई थिंक यू विल सपोर्ट आवर सिस्टम, दे विल बी आंसरलेस. Suji sir, I'll just add on in this. Sir, actually, पेरेंट्स को कन्विंस करना ठीक है, बट सर कभी कभी वो जो हमारा जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स होता है और पेरेंट्स का जो परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स होता है, उनका डिमांड होता है कि बच्चा परफॉर्म करे, बट एक टीचर और एक कोच का क्या होता है कि भाई बच्चे का मैं डेवलप करना चाहता हूँ, टाइम लगेगा. वो कॉन्सेप्ट कैसे सर हम पेरेंट्स को समझा सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम क्लियर कर दें. मैं इसी प्रोटेक्ट के बारे में, यदि तो देखिए आपने इंस्ट्रक्शंस सफिशिएंट दिए हैं और वो आपकी कोचिंग स्टाइल को कभी आके टेक एन अपॉर्चुनिटी कि साहब आप एक दफा कभी आके बैठिए, अगर आप कुछ सेशन एक आधा जब भी उनके पास टाइम हो, अलाउ देम टू सिट एंड ऑब्जर्व योर सेशन की टेक्निकलिटी. अब मैं चाहता हूँ कि मेरा खिलाड़ी मैं 2 दिन आपके पास भेज दिया कि साहब गंगवार साहब हमारे बहुत टॉप कोच हैं और साहब ये बच्चा थोड़ा सा स्कूल लेवल पे खेलता है, इसको बहुत अच्छा फुटबॉलर बना दे. अब मैं देखा यार ये तो इतना आसान काम नहीं है, वहां तो कितनी स्किल सीखनी पड़ती हैं. तो मेरी कुछ तो एप्रीहेंशन जो मेरे दिमाग में आ रहे थे थोड़े क्लियर हुए कि हाँ ये इतना तो नहीं है, इट्स नथिंग इजी. दूसरा आप एक सिंपल सा प्रश्न पूछें बच्चे का कि बच्चा आपका मैथमेटिक्स में वीक है, क्या साहब वो एकदम से वो 2 दिन में या 1 महीने में वो बाकी बच्चों के एज पार आ जाएगा? इतना प्रैक्टिस कराएंगे, आप ट्यूशन कराएंगे, उसकी स्किल्स को रिफाइन कराएंगे अपार्ट फ्रॉम रूटीन एक्स्ट्रा. ऐसे ही बच्चे का आप फोकस कर रहे हैं कि हाँ ये इसकी वीक स्किल्स है, इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ. उस टाइम में आप उनको थोड़ा सपोर्ट किया, उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया, जो जिनका इंटरवेंशन हो रहा है तो थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस आ गया. नाउ दे अंडरस्टैंड यस द कोच इज लुकिंग आफ्टर गिविंग ड्यू अटेंशन, एंड आप उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक प्लान दे दिया कि हाँ भाई ये जब तक लेवल में नहीं आ जाएंगी, इट कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल. यदि ये नेक्स्ट में जाते हैं इसकी वजह से इंजरी होंगी, एथलीट विल बी अगेन आउट ऑफ द ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगेन ही विल लूज सम मोर डेज ऑफ ट्रेनिंग, एक्टिव ट्रेनिंग. तो वो उसको समझ में आ गया यस इट गोज इन दिस मैनर. तो हम अपनी प्रोसेस को नहीं बताएंगे, ये जो सुजीत साहब ने आपने बनाई भी है उसमें लिखा हुआ भी है कोच एजुकेशन प्रोग्राम, सॉरी द पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम. तो एज ए कोच हमारी नैतिक दायित्व बनता है हम उनको बेसिक जो कोच की जो अपनी ट्रेनिंग फिलोसफी के बारे में थोड़ा बताएं. तो वो शायद मतलब ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है 100% समझ में आ जाएगा, बट वो मैकेनिज्म आपका समझेंगे और काफी हद तक फिर आपको सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच सर. नाउ सुजीत सर ओवर टू यू, if you have question, yeah please. सर एक दो क्वेश्चन है. जी सर. सर ये जो हमने बातें की है बहुत सारे आइडियलिस्टिक बातें हैं इन द सेंस कि ये कर, मेरे 2 क्वेश्चन है, एक तो आपको पर्सनल क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है. सो वन क्वेश्चन इज कि सर जब हम लूज कर जाते हैं मैचेस, ये सारे सिचुएशन जो आता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ एथलीट और कोच और ये इसका बहुत सारे ये होता है कि जब हम हार जाते हैं कोई मैचेस, हम कैसे उस चीज को डील करते हैं एज ए कोच? आपका क्या थॉट्स है कि जब व्हेन यू आर लूजिंग मैचेस हाउ डू यू डील विद एथलीट और अ पेरेंट? देखिए ये बात आपने बिल्कुल ही सर ये साथ में दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ. हाँ. आपने भी कोच किया, सब कुछ किया है, तो बेसिकली एज ए कोच एथलीट और पेरेंट्स को मैनेज करने में किसमें ज्यादा डिफिकल्टी हुआ है और क्या है? मतलब दोनों रिलेटेड ही क्वेश्चन है सर. हाँ आपका सुजीत साहब बिल्कुल मैं इस बात में 200% एग्री हूँ. ये एग्जैक्टली इसका जो जवाब है, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी है और हम ये अच्छे से समझते हैं कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरीवन. ये हम समझते हैं ये देश की जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है या टॉप लीडरशिप है, कैन दे प्लीज एवरी सिटीजन? इट्स नॉट पॉसिबल. उसमें कुछ डिसीजंस हो सकते हैं उनको लाइक होंगे, कुछ को नहीं भी होंगे. लेकिन क्या हमारी जो ब्रॉडर फिलोसॉफी क्या है? हमारी ब्रॉडर फिलोसॉफी है कि भाई हम जो जितने ट्रेनिंग अपने पास में आए हैं उनका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं. उनमें से एक कोई खिलाड़ी हो सकता है कि उसका मोटिव था बस ये टूर्नामेंट में somehow I play with hook and crook and I get a certificate and next time I have to take an admission. Maybe one of the criteria or objective of one of the player. तो जब आप एथलीट के साथ में जो रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे थे, आपको एक एलिमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी था, जिसको हमने कहा भी था फिलोसॉफी. आपको फिलोसॉफी डिजाइन मतलब सेटअप करने से पहले ये पता होना चाहिए व्हाई दिस एथलीट इज कमिंग, व्हाट पर्पस इज कमिंग. पर्पस में ये इतना स्पेसिफिकली बताया गया है
जो मैं आपके साथ में शेयर भी करना चाहूंगा। पर्पज ये बताया गया कि हर खिलाड़ी ग्राउंड में आएगा, मैं ये पूछूं व्हाई डू योर प्लेयर गेट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट, क्यों आता है, क्यों आना चाह रहा है? ये जो कोच आपका शायद जवाब क्वारी हो सकती है या नहीं हो सकती, मेरे ख्याल से शायद आप मेरी बात में सहमत होंगे। आप पूछेंगे बेटा आप ये क्यों खेल रहे हैं, ये स्पोर्ट आपको क्यों पसंद है, तो वो बच्चा कोई ना कोई जवाब देगा, जवाब इन्हीं में से होगा। हो सकता है वो कहेगा माय अदर फ्रेंड्स आर कमिंग सो आई एम कमिंग, हो सकता है कहेगा सर कोच साहब मुझे ये मजा आता है इसमें, हो सकता है वो कहे मेरे को यहाँ बहुत सारे दोस्त बनते हैं, मीट अदर पीपल्स एंड द फ्रेंड्स, he said that you teach very good skills so I am there to learn the new skills। हो सकता है बच्चा कहे कोच I want to excel, कोई हो सकता है some of them say coach I want to improve my fitness। तो देखिए जनाब सबके मोटिव डिफरेंट होंगे, सारे बच्चे के एक ही मोटिव नहीं है। कोई बच्चा चाहता है दिस ईयर आई शुड गेट एन एडमिशन एंड सो आई नीड अ सर्टिफिकेट एंड देयरफॉर आई हैव टू बी इन द टीम। दूसरा कहेगा साहब मुझे तो नेक्स्ट 4 ईयर का टारगेट है एंड आई एम प्रिपेयरिंग एंड आई वांट टू improve my overall development and that for next level so that next year I can go to the next camp or potential camp, the top 16 or top 18 टीम में आना है मेरे को, तो therefore I am there। तो ऑब्जेक्टिव जब डिफर कर रहे हैं अब आपको जो इश्यूज आपने ये इस बात के लिए कहा कि जब ये बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स का प्रेशर और जो you have used another word the acid expectations दोनों अलग अलग है। बच्चा ये कहता है कि साहब मेरे को तो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, पेरेंट्स कहते हैं साहब अगले साल इस बच्चे को तो मैट्रिक में आ जाएगा या बोर्ड में आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर नहीं खेल पाएगा, इसको बोर्ड की तैयारी करनी है। अल्टीमेट पर्पस क्या था खिलाड़ी का कि डेवलपमेंट है, तो आपको इन बाकी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। यदि तो आप देखिए साहब टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्लीज then he or she has to spare enough time। आपका इसी साल का टारगेट है, so this is your short objective or immediate objective। अब ऐसी कंडीशन में मैनेज कैसे किया जाए, that was your query, right? If I am not wrong, ऐसी कंडीशन में as a coach how we should handle the situation, to my understanding I may not be 100% correct, many of those who listening me may disagree, लेकिन हम ये तो श्योर है कि हम सभी लोगों को प्लीज नहीं कर पाएंगे, बट यदि मैं एज ए कोच अपने ज्यादातर प्लेयर्स का ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, देन आई जस्टिफाई यस आई डिड माय गुड जॉब। मेनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉर माय टीम मेंबर्स हैव गेन्ड देयर ऑब्जेक्टिव व्हाई दे हैव जॉइंड मी, दे हैव ऑप्टेड मी एज ए कोच, एंड मैंने काफी हद तक उनका लेवल में सुधार करके दिखाया। तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि यस आई डिड माय गुड वन ऑफ द गुड पार्ट। बट मैं ये जरूरी नहीं कि वो सारे ही लोगों को मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा, बट एट द सेम टाइम दोज हु फील लिटिल नॉट हैप्पी, अगेन आई विल हैव ए रेपो सेपरेट इंटरेक्शन एंड गिव अ बिट ऑफ टाइम विद देम एंड एडवाइज देम इफ यू रियली वांट टू, you want higher level of coaching, this was your expectation, there is another platform, still you can join and they are professional people and you can continue your training। तो आपने उसको पॉजिटिव नहीं हुआ, आपने उसका रास्ता ब्लॉक नहीं किया, तो एटलीस्ट वो आपका जो रोल मॉडल वाली फिनोमिना है वो आप दिखा पाने में सफल हुए, और अल्टीमेटली दिस विल स्पीक इन द सोसाइटी समवेयर एंड पीपल विल अगेन आस्क योर ओपिनियन, दैट्स आई डू बिलीव। Yeah, thank you so much, thank you so much sir। Yeah, thank you sir। I think thank you so much sir for replying all the questions wonderfully। Now we have with us our principal sir Dr. G. Kishore sir here, and sir we welcome you, and we would like to your valuable thoughts on the topic that is working with others। So sir please। Thank you very much Dr. Narendra, excellent session Dr. Jayaprakash। थैंक यू सर। जयप्रकाश जी बहुत खुशी हुई आपके साथ ज्वाइन करने में, थोड़ा लेट हो गया और एक सेशन था इसलिए। गुड आफ्टरनून मिस्टर सुजीत। तो इसे ये तो आप एक बहुत अच्छा एक टच आपने टच किया है, दूसरों के साथ काम करना, किस तरफ से आप दूसरों के साथ काम करेंगे। ये जो खेल शिक्षक हैं उनके लिए ये बहुत किस काम करने के तरीका बहुत खासियत होता है। तो आप कई तरफ का लोगों से आपको संपर्क करना है। पहले आपका
trainees, students, parents, school management, other teachers, community, and various other sports organizations. आपका साथ बिल्कुल बहुत तरीके के बहुत अलग अलग सेक्शंस की आदमी आते हैं, अलग फील्ड से आता है. इन लोगों से आप किस तरफ से संपर्क करें, आपका इनके साथ पीआर कैसे रहेंगे, पब्लिक रिलेशन, आपका कम्युनिकेशन किस तरफ से रहता है रहेंगे, आप इनको कॉन्फिडेंस कैसे मिल करेंगे, क्योंकि कोई आपको सुनेगा जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपका विश्वास है, आपका बातों से विश्वास होना चाहिए. तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आपको किस तरफ से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये बहुत बड़ी बात है. आपने बहुत अच्छी विषय के इसमें किया है कि आप किस तरफ से आप दूसरों को कन्विंस कर पाए, क्योंकि क्या आपका जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो आप इम्पार्ट कर रहे हैं, जो आप टीच कर रहे हैं, जो आप कोचिंग कर रहे हैं, उसका किस तरफ से दूसरों को उससे फायदा है, उसको ये क्या 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 लाभ मिलता है, किस तरह से उसको उससे फायदा मिलता है. इन चीजों को दूसरों को कम्युनिकेट करना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उनका एक्सेप्टेंस बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है. ये कई समय जो है हम लोग इसको भूल जाते, क्योंकि हम अपने अपने दुनिया में हैं, अपने काम करते रहते हैं, लेकिन हमको ये हर समय में ये चीज हमारा मन में आता, जो हम कर रहे हैं वो दूसरों को उसको समझ में आया है कि नहीं, उनका साथ हम काम कर रहे हैं तो उसको उसका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर है कि नहीं, इन चीजों के ऊपर ध्यान होना है. उसका जो स्किल्स है हर शिक्षक को, हर परीक्षक को होना चाहिए. तो आपने इस सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया. मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारक अदा करता हूँ. मेरे को ये श्योर है कि सब पार्टिसिपेंट्स को इसके काफी फायदा मिला होगा, उनका स्किल्स इससे अच्छा हो जाएंगे और अच्छी तरह उनको फील्ड में और आगे बढ़ने में उसका आपसे इससे मदद मिलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. Thank you so much, sir. Sujit sir, anything else or like? सर मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, आपके देव से बात करके आप बहुत फिट लग रहे हैं सर. आई थिंक एट योर दिस थिंग यू लुक एक्सट्रीमली फिट एंड आपके जो बात करने का तरीका आई थिंक फॉर लॉट ऑफ कोचेस एंड पी टीचर्स काफी वार्म और काफी इजी talking style है, and I think all the teachers would definitely and सर काफी इंस्पायरिंग है कि आप पोल वॉल्ट वगैरह करना चाहते हैं. सो करते थे, तो उसके बारे में आई वुड वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम बाद में बात करेंगे कि आपने इतना इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट, इट्स नॉट ए इजी स्पोर्ट, एंड हाउ यू एक्चुअली एक्सेल एट दैट लेवल. बहुत ही काफी इंस्पायरिंग है काफी लोगों के लिए कि आपने आपके सारे जो इतना भी सुना हमने बिगिनिंग में आपके बारे में, it's quite inspiring actually to hear all that story. In fact, offline also I would want to hear about Paul Walter. ये बड़ा interesting चीज है. Thank you so much sir, very inspiring sir. And सबसे जो की था इस सर के बारे में कि सर इज विनर ऑफ गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप एज वेल 100 मीटर फॉर. हाँ मैंने कंप्लीट लिया सर. ये किशोर साहब से सीखा है, मुझे पता है. विल्बर साहब इतना जिक्र करते हैं तो और द मेंटर, द सीनियर प्लेयर, तो जो वो फिट रह सकते हैं. आई कैन सी वेरी वेल. आई नो सर ऑल योर एबिलिटीज, मुझे अच्छे से मालूम है. थोड़ा सा हम भी उसका प्रयास कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी थोड़ा प्रैक्टिस करके. सो इट्स ऑल गॉड ग्रेस एंड योर सपोर्ट. सर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड इज आल्सो वेरी विजिबल एक्चुअली. थैंक यू सो मच सर. So thank you so much, sir, for joining us, for sharing your valuable knowledge, your all worldwide experience with us and all the participants. On behalf of Sport Authority of India, Fellow India, Lecturer National College of Physical Education, and especially Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and on behalf of our entire team and our principal, sir, Dr. G. Kishore, sir, because of sir support and help, this venture is going to get a successful one. So thank you so much, sir, and we will definitely look forward to you having our some other platform as well with us. Thank you so much, sir, and really it was wonderful session, very very to the point, and जो आपने जिस तरह से बात करी participants से, that was really very useful. Thank you so much. And I would like to say thank to our principal, sir, Dr. G. Kishore, sir, for joining us, and thank you so much, sir.
And now our course program co-coordinator, Mr. Sujit Panikari, sir. Thank you so much, sir, for always being with us. Thank you, and all the participants for your kind support and your interest. Thank you, everyone. And it's sir, आप announce करेंगे evening का? Yeah. Evening there's a program at 5 o'clock. Leadership development and community engagement for recreation sports. Let me personally go in his office. So please be there. ये 5 बजे का program है. So 3 speakers है आज. बड़ा अच्छा इसमें leadership development community engagement जो है recreation sports के through कैसे होता है उसके ऊपर है. तो आप join कीजिए. Around 4:30 you should join. 5 o'clock को 3 speakers है. Should be very interesting. Thank you so much. Look forward. वेबिनार का एक वो था ना योगा के ऊपर Yeah.